The life cycle of a servlet. In the previous session, we have covered this life cycle of a servlet. These are the steps. Okay, and there are three methods in servlet life cycle. That is initialization, service, and destroy method. And these are the steps. Okay, these are the steps of life cycle of a servlet. First, the servlet class is loaded. Servlet class load होने के बाद क्या हो रहा है? After the servlet class is loaded, instance of that class is created. Then initialization is done. Initialization means loading. Okay, initialization means creating and loading of the page into the container. Initialization of instance. Okay, जितने भी instances है उसका initialization. Then service method is invoked when the client sends the request. This method is invoked. When the client sends the request and the server sends the response, this method is invoked because this service method contains two parameters. What are the two parameters? Request and response. Service method contains two parameters, that is request and response. Destroy method, it is called only once, and it is called by whom? Servlet container. A servlet container calls destroy method only once whenever the servlet wants to uh, destroy the page, means in terms of if the servlet wants to क्या करना है? Free the resources. Okay, free the resources which are used by the instances. So destroy method is called. Connections, suppose database connections we have to remove, or some resources we have to remove from the instances, we have to free the resources. So in that case, destroy method is invoked. This init method and destroy method is called only once. It is called only once. Okay, so init method is called only once at the time of initialization, and for the each new request, that instance same instance is used. Okay, for the future request, same instance are used. तो init method एक ही बार कॉल होता है, और फ्यूचर में जो भी रिक्वेस्ट आएगा the same instance यूज होगा. Destroy method, it is called only once by the servlet container, but service method is called for each new request. Service method is called for जितने भी new request आएंगे, for each new request this service method will be called. So there are three important methods of life cycle of a servlet: init, service, and destroy method. Now in this JavaX, in servlet API, there are two packages, JavaX.servlet and JavaX.servlet.http, and many interfaces and classes are present in these packages. Okay. So what we have seen yesterday, cookie. Okay, cookie क्या है? What is cookie? See, cookie, it is a small piece of information. Cookie, it is a text file. You can say cookie is a text file. It is a small piece of information that contains user information. यूजर का इंफॉर्मेशन ही रहता है कुकी में. ठीक है, इट स्टोर्स द क्लाइंट आइडेंटिटी. कुकी स्टोर्स द क्लाइंट आइडेंटिटी. सो व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट फाइल ऑफ ए कुकी? क्या रहता है कुकी के फाइल में? कुकी फाइल डोमेन नेम रहता है. ठीक है, डोमेन नेम, देन पाथ इंफॉर्मेशन, देन वर्जन नंबर. ठीक है, ये सब क्या है? कुकी में रहता है. Cookie is present on the web pages. अब cookie कहाँ पे stored? Is stored on a web browser. ठीक है, हमारे web browser में cookie stored होता है, like series. Settings in privacy and security. Cookies and other sites.
cookies and other site data. So in that you can see all cookies and site data. ठीक है, ये all cookies and site data यहाँ पे देखो google.com का है. Then familiar name is ठीक है. एकेडफ्लिक्स एक साइट है, ठीक है, उसका कुकी का नेम ये दिया हुआ है _fbp. कंटेंट उसका domain.acadflix.com है, पाथ है. तो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ ए कुकी. नेम सेट कर सकते हैं, कंटेंट है, डोमेन नेम, देन पाथ स्लैश से स्टार्ट हुआ है, सेंड फॉर, एक्सेसिबल टू स्क्रिप्ट ईयर्स, क्रिएटेड कब हुआ है, एक्सपायर कब होगा. तो कुकी इंफॉर्मेशन है जो हमारे वेब ब्राउजर पे स्टोर रहता है. तो बहुत सारे कुकीज प्रेजेंट है. और जब भी हम लोग पेज एक्सेस करते हैं तो पेजेस में हम लोग क्या देना पड़ता है, अलाउ कुकी करना पड़ता है. ठीक है, कुछ पेजेस में अलाउ करना है, डिनाई करना है, इट इज अप टू अस. तो अगर हम लोग अलाउ करते हैं तो हमारा क्लाइंट जो है, ठीक है, जो सर्वर है वो क्या करता है, क्लाइंट का आइडेंटिटी को स्टोर कर लेता है. तो व्हेनेवर तुम सेकंड टाइम जब रिक्वेस्ट भेजोगे तो इजीली तुम्हारा आइडेंटिफाई होगा कि पहले भी तुम पहले वाले कस्टमर हो, फॉर एग्जांपल वैसा आइडेंटिटी. जैसे अभी शॉपिंग कार्ट हो गया एग्जांपल, अमेजन फ्लिपकार्ट में शॉपिंग कार्ट का एग्जांपल ले लो, वहां पे कुकीज यूज होता है. ठीक है, कुकीज बेसिकली सेशन मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है. सेशन मैनेज करना है, ठीक है, कितना कुकीज की हेल्प से वी कैन मैनेज द सेशन. कुकीज क्योंकि विद द हेल्प ऑफ कुकीज यूजर का आइडेंटिटी जो है, यूजर का आइडेंटिटी कहाँ पे स्टोर हो जाता है, सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है कंटेनर में. तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेशन मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, एक यूजर को कितना सेशन देना है, कितना सेशन का टाइम देना है पेज पे, तो वो सब कुकीज से मैनेज हो सकता है. These are the methods of cookies: set comment, get comment, domain, get domain, set maximum age, get maximum age. These are the methods of cookie. Okay, already we have seen this. Okay, now we will start this new one, new topic. New topic नहीं है, उस servlet API का class ही है. HTTP servlet class. ठीक है, HTTP servlet class. See, what is HTTP? What is the use of HTTP servlet class? ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. पहले फर्स्ट थिंग, ये जो क्लास है HTTP सर्वलेट क्लास कौन से पैकेज का है, इजीली यू कैन से ना, HTTP लिखा javax.servlet.http, javax.servlet.http. ठीक है, तो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. मीन्स इसका जो अगर सब क्लास तुमको बनाना है, सब क्लास ऑफ HTTP. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. फर्स्ट थिंग, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक है, दैट इज यूज्ड टू क्रिएट HTTP सर्वलेट. that is used to create HTTP सर्वलेट फॉर अ वेबसाइट. ठीक है, HTTP सर्वलेट क्रिएट करने के लिए, कोई भी वेबसाइट का अगर तुमको HTTP सर्वलेट क्रिएट करना है, दिस HTTP सर्वलेट क्लास इज यूज्ड. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, a subclass of HTTP servlet. ठीक है, a subclass of HTTP servlet must override at least one method. इसका सब क्लास तुम बनाओगे, ठीक है, तो ये सब क्लास जो है HTTP सर्वलेट का मस्ट ओवरराइड एटलीस्ट वन मेथड, तो उसको ओवरराइड करना ही चाहिए. ठीक है, नेसेसरी है इसमें. तो वो मेथड्स कौन से है, डू गेट मेथड, डू पोस्ट मेथड, डू पुट, डू डिलीट, देन गेट लास्ट, मॉडिफाइड मेथड. ठीक है, ऐसे मेथड्स है, ये सब मेथड्स ऑफ HTTP सर्वलेट क्लास. डू गेट मेथड, द सर्वलेट सपोज HTTP गेट रिक्वेस्ट, अगर गेट रिक्वेस्ट तुमको रखना है तो डू गेट मेथड. पोस्ट टाइप रिक्वेस्ट रखना है तो डू पोस्ट मेथड. ठीक है, देन डू पुट मेथड. डू पुट मेथड से क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर पुट रिक्वेस्ट रखना है, ठीक है, वी विल यूज दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड इन द प्रोग्रामिंग. डू गेट से क्या होगा, डू पोस्ट. डू पुट वी विल नॉट यूज, डू पुट नहीं यूज करेंगे. डू गेट, डू पोस्ट वी आर गोइंग टू यूज इन प्रैक्टिकल्स. देन डू डिलीट मेथड. ठीक है, HTTP डिलीट रिक्वेस्ट के लिए
देन इसमें एक और मेथड एडअप करना है, init एंड डिस्ट्रॉय मेथड। ठीक है, init एंड डिस्ट्रॉय मीन्स क्या करने के लिए, टू मैनेज रिसोर्सेज दैट आर हेल्ड फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ द सर्वलेट। ठीक है, जो सर्वलेट के लाइफ साइकिल के लिए इनिशियलाइजेशन करना, पेज क्रिएशन, पेज लोड करना एंड देन डिस्ट्रॉय करना पेज को। ठीक है, तो ये सर्विस हैंडल नहीं करेगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसका काम क्या है, बताएगा कि पेज जो है, ठीक है, पेज क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है सीवी एचटीटीपी सर्वलेट क्लास। इट यूज टू create HTTP servlet. Okay, it used to create HTTP servlet for a particular website. So different methods, HTTP servlet subclass, a subclass of HTTP servlet must override at least one method. तो कोई भी हो सकता है, do get, do post, do delete, init and destroy. ठीक है, ये मैं अभी यहाँ से रिमूव कर रही इतने मेथड से। Then HTTP servlet request, HTTP servlet response। ठीक है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये दोनों इंटरफेस है, इंटरफेस ऑफ HTTP पैकेज ओनली, जावा एक्स डॉट सर्वलेट और HTTP। ठीक है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस, ये इंटरफेस की हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, यू कैन प्रोवाइड रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फॉर HTTP सर्वलेट्स। ठीक है, टू प्रोवाइड रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फॉर HTTP सर्वलेट्स। ये जो इंटरफेस है, दिस इंटरफेस HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, दिस इंटरफेस एक्सटेंड्स दी सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस यूज करता है, एक्सटेंड करता है ये, दिस इंटरफेस एक्सटेंड्स, दिस इंटरफेस एक्सटेंड्स सर्वलेट रिक्वेस्ट। इस सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस हम लोग कहाँ पे देखे, इन सर्वलेट पैकेज ना, जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज जो है। ठीक है, तो ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस किसको एक्सटेंड करता है, इस सर्वलेट रिक्वेस्ट को। So this interface, HTTP servlet request interface, this interface extends the servlet request interface to provide request information for HTTP servlets। ठीक है, तो सर्वलेट कंटेनर क्या करता है, सर्वलेट कंटेनर विल क्रिएट एन HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। कंटेनर क्या काम है, क्रिएट्स इंस्टेंस ऑफ HTTP, क्रिएट्स ऑब्जेक्ट ऑफ HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड पासेस, पास किसको करेगा वो, कोई भी एक सर्विस के मेथड्स को। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय द कंटेनर। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय द कंटेनर। आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कहाँ पे पास करेगा वो, कोई भी सर्विस मेथड को। तो सर्विस मेथड्स कौन से, डू गेट या डू पोस्ट, डू गेट और डू पोस्ट। बात समझ में आ रही है, इसका काम क्या है, पेज का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद सर्विस मेथड को वो ऑब्जेक्ट वो पास कर देगा एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वो जो है वो ऑब्जेक्ट रीड कैसे होगा, उसको डू गेट की तरह पेज को लोड करना है कि डू पोस्ट की तरह करना है। ठीक है, वी विल सी व्हाट इज डू गेट एंड डू पोस्ट। ठीक है, पहले दो मेथड याद रखो नाउ, डू गेट और डू पोस्ट। आफ्टर अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या करता है ये, HTTP फर्स्ट थिंग क्या है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस जो है एक्सटेंड्स किसको करता है, एक्सटेंड दी सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस। ये सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस किसका पार्ट है, विच पैकेज, जावा एक्स डॉट सर्वलेट। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग इज सर्वलेट जो कंटेनर है, ठीक है, सर्वलेट कंटेनर क्रिएट्स एन HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड passes it as an argument to the सर्विस मेथड, सर्वलेट सर्विस मेथड। सर्विस मेथड के दो टाइप्स है, डू गेट एंड डू पोस्ट, डू गेट एंड डू पोस्ट। ठीक है, नाउ देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, डिफरेंट मेथड्स है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के। गेट कुकीज मेथड, कुकीज यूज कर सकते हो, गेट डेट हेडर मेथड, गेट सेशन मेथड, लॉगिन मेथड,
एंड लॉग आउट मेथड। सी गेट कुकीज मेथड मीन्स सिंपली क्या होगा, अगर तुम गेट कुकीज लिख लो तो इट विल रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, it will return all the cookie objects the client sent with this request। client ने जो भी पेज एक्सेस किया है, ठीक है, it contains all of the cookie the client sent with the request। the client के साथ में जो भी कुकी का पेज है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको वो रिट्राइव करेगा with the help of get cookies method। तो ये सिर्फ रिटर्न करवाने, गेट मीन्स रिटर्न करवाने के लिए। देन इसमें कुछ सेट नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ गेट ही कर सकते हैं, बिकॉज इसका काम इतना ही है, क्या करना, HTTP टाइप ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल करना। मींस इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद वो एज एन आर्ग्यूमेंट किसको भेजता है, सर्विस मेथड को भेजता है, वेदर इट इज डू गेट और डू पोस्ट। ओके, डू गेट एंड डू पोस्ट। तो गेट क्या काम, सिर्फ रिट्राइव करना, गेट कुकीज, गेट डेट हेडर, ठीक है, गेट कुकी, उसके बाद गेट डेट हेडर, गेट सेशन, लॉगिन मेथड एंड लॉग आउट मेथड। नाउ सी जो गेट डेट हेडर मेथड है, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड जो डेट है, कब कुकी क्रिएट हुआ, ठीक है, उसका एक्सपायरी कब है, ये सब गेट डेट हेडर से यू विल गेट। जो उसका डेट का इंफॉर्मेशन है, क्रिएशन टाइम और उसका एक्सपायर टाइम, ये मेथड से रिट्राइव होगा, गेट डेट हेडर मेथड। देन गेट सेशन मेथड, सेशन मेथड से क्या मिलेगा, रिटर्न द करंट सेशन एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्ट। करंट सेशन क्या है, जो भी रिक्वेस्ट आया है उसका करंट सेशन क्या है, मतलब कितने लिमिटेड सेशन टाइम क्या है उसका, ठीक है। अगर कोई भी सेशन अगर समझो नहीं है, अगर तुम फिर भी रिट्राइव करो तो क्या करेगा, एक मतलब ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट वन सेशन इफ इट डज नॉट हैव एनी सेशन। समझ रहे हो, गेट सेशन मेथड से हेल्प से क्या होगा, इट रिटर्न्स द करंट सेशन एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट में कोई भी सेशन है, इट विल क्रिएट वन सेशन। देन लॉगिन मेथड है, लॉग आउट मेथड, ठीक है। लॉगिन और लॉग आउट मेथड भी दोनों इसी का है, HTTP सर्वलेट का। तो लॉगिन मेथड में लॉगिन टाइम आ जाएगा, कब पेज को तुमने एक्सेस किया, लॉग आउट में कब पेज कब लॉग आउट हुआ है। सिंपल मीनिंग है, कब पेज को क्लोज किया। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट से एसोसिएटेड है, जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है तो कुकीज उसका HTTP ये इंटरफेस यूज करके, ठीक है, उसके इंटरफेस के साथ कुछ मेथड्स एसोसिएटेड है, वो पेजेस जो है एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, वी कैन गेट कुकीज इंफॉर्मेशन, हेडर इंफॉर्मेशन, सेशन इंफॉर्मेशन, लॉगिन एंड लॉग आउट इंफॉर्मेशन। रिस्पॉन्स भेजने के टाइम पे सी HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये कब यूज होगा, ये कौन से पैकेज का पार्ट है, javax.servlet.http, ठीक है, ये पैकेज में है, ये javax.servlet.http। so it is an interface, it is an interface, and this interface extends the servlet response interface, this interface extends the servlet response interface, ठीक है। and this interface extends the servlet response interface, ठीक है, क्यों एक्सटेंड करता, टू प्रोवाइड HTTP स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। HTTP स्पेसिफिक जो फंक्शनैलिटी है वो प्रोवाइड करने के लिए, फॉर एग्जांपल इन सेंडिंग अ रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए थ्रू HTTP दिस इंटरफेस इज यूज, एंड दिस इंटरफेस इज एक्सटेंडिंग सर्वलेट, कौन सा यूज करे, सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस के फंक्शंस को यूज करता है ये, ठीक है। देन फॉर एग्जांपल सर्वलेट जो कंटेनर है, ठीक है, सर्वलेट कंटेनर, तो वो सर्वलेट कंटेनर का क्या काम है, सर्वलेट कंटेनर सेम जैसे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है, सेम एज इसमें भी क्या होगा, सर्वलेट कंटेनर क्रिएट्स एन HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एंड पासेस इट एज एन आर्ग्यूमेंट टू दी सर्विस मेथड। इसका भी काम यही है, क्या करेगा, कंटेनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा इसका, एंड देन एज एन आर्ग्यूमेंट वो सर्वलेट का जो सर्विस मेथड है, डू गेट एंड डू पोस्ट, उसको पास करेगा, ठीक है।
whether it is do get होगा या तो do post होगा. Then different methods of HTTP servlet response. Add cookie, contains header, encode कर सकते हो URL को, error send करना, ठीक है. Response में you can send error and send redirect also. Add cookie means you can add the specified cookie to the response. ठीक है, you can add the specified cookie to the response page में तुम add कर सकते हो. Contains header, कि कभी भी हम लोग पेज एक्सेस करते कुकी जो मैसेज आता है वो रिस्पॉन्स ही है, ठीक है. तो वो रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोग को. तो रिस्पॉन्स में क्या है, पेज में क्या ऐड किया हुआ है, कुकी ऐड किया हुआ है, ठीक है. तो ऐड कुकी मेथड से हो रहा है ये. ऐड कुकी मेथड मीन एड्स द स्पेसिफाइड कुकी टू द रिस्पॉन्स. कंटेन्स हेडर मीन्स contains header, encode URL, send error, send redirect. See, header means क्या क्या, हेडर में कौन से डिफरेंट हेडर है. डेट हेडर, या तुमको डेट का हेडर ऐड करना है, या सिंपली तुमको उसका एक्सपायरी डेट ऐड करना है, या कुकी का क्रिएशन टाइम ऐड करना है, ये सब इसमें आएगा, हेडर में आएगा, कंटेन्स हेडर मेथड में. तो कंटेन्स हेडर मींस इट विल ऐड अ रिस्पॉन्स हेडर विद द गिवन नेम. तुम्हें हेडर एक नाम ऐड कर सकते हो, कुकी का नेम यू कैन ऐड, ठीक है, हेडर नेम, और उसका डेट वैल्यू, ठीक है, डेट वैल्यू क्या है. तो ये कंटेन्स हेडर मेथड से यू कैन डू. एनकोड यूआरएल, विद द हेल्प ऑफ एनकोड यूआरएल मेथड क्या करता है, ये जो स्पेसिफाइड जो यूआरएल मींस एड्रेस ना, वेब पेज का एड्रेस. यूआरएल मींस वेब पेज का एड्रेस, ठीक है. इट एनकोड्स द यूआरएल बाय इंक्लूडिंग द यूआरएल को किसके साथ एनकोड करेगा, वो सेशन आईडी के साथ में, सेशन आईडी के साथ में यूआरएल को एनकोड करना, ठीक है. दैट इज एनकोड यूआरएल मेथड. सेंड एरर मेथड सेंड्स एरर रिस्पांस टू द क्लाइंट. एरर रिस्पांस सेंड करना क्लाइंट को बाय एरर रिस्पांस सेंड करना मींस बाय स्पेसिफाइंग सम स्टेटस आल्सो. कौन से टाइप का एरर है, जैसे 403 एरर आता है, कभी कभी 404 एरर, और कोई भी मैसेज भी हो सकता है विद नंबर. कभी कभी एरर का नंबर भी होता है, और नंबर का मीनिंग भी होता है, एंड देन उसका एक मैसेज होता है समटाइम्स, ठीक है. तो सेंड एरर मेथड, इट सेंड्स एन एरर रिस्पांस टू द क्लाइंट यूजिंग द using some type of messages or number, error number. Then send redirect method, ठीक है. तो send redirect क्या करता है, it will redirect response to the client by using the specified redirect URL, ठीक है. कोई भी URL यूज करके रिडायरेक्ट करना क्लाइंट के रिस्पॉन्स को. जैसे हमारे पेज में बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल होते हैं, रिडायरेक्ट करते हैं, एक पेज में बहुत सारे ये होते हैं, रिडायरेक्ट के लिए लिंक्स प्रेजेंट होते हैं. तो वो दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस सेंड रिडायरेक्ट मेथड. So different methods of HTTP servlet response. Cookie, you can add cookie while sending the response to the client. Add cookie, header add कर सकते हो, URL you can encode with session ID. Error method, send error, send redirect method. ये लास्ट वन है HTTP सेशन इंटरफेस, ठीक है. HTTP सेशन इंटरफेस जो है, कौन सा पैकेज है, HTTP पैकेज है, राइट. HTTP पैकेज का ही पार्ट है ये. तो ये इंटरफेस की हेल्प से यू कैन आइडेंटिफाई अ यूजर, यू कैन आइडेंटिफाई अ यूजर, ऐसा यूजर जिसने मोर देन वन पेज रिक्वेस्ट किया है और विजिट टू अ वेबसाइट. वेबसाइट को मोर देन वन टाइम अगर उसने विजिट किया है, कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर किया है अपने पेज पे, या जैसे शॉपिंग कार्ट में कुछ भी. तो ये सब कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ HTTP सेशन इंटरफेस, ठीक है. तो सर्वलेट कंटेनर क्या कर, सर्वलेट कंटेनर यूजेस दिस इंटरफेस, HTTP सेशन इंटरफेस, टू क्रिएट सेशन. द सर्वलेट कंटेनर यूजेस दिस इंटरफेस to create session between HTTP client and HTTP server. So who is using this interface? Servlet container. Servlet container uses this interface to create a session between an HTTP client and an HTTP server. Okay. तो सेशन क्या होता है, सेशन क्या होता है, बेसिकली एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होता है, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होता है सेशन.
A session usually किसको see a session usually corresponds to one user, एक user जो है who responds to who may visit a site for many times, ठीक है, एक साइट उसने many times visit किया है, तो बेसिकली उनके लिए सेशन होता है, ठीक है, उनके प्रेफर विद द हेल्प ऑफ सेशन ओनली जो एडवर्टाइज होते हैं, ठीक है, हम लोग को डिफरेंट एडवर्टाइज मिलता है बेस्ड ऑन आवर सर्च, जैसे हम यूट्यूब पे जो सर्च करते हैं तो सामने देखो हम लोग को वही दिखाई देता है जो हम लोग सर्च कर रहे हैं, गूगल पे भी हम लोग जो सर्च करते हैं मोस्टली उसके ही न्यूज आने लगते हैं हम लोग को। तो बेस्ड ऑन ये सब कैसे हो रहा है विद हेल्प ऑफ सेशन ओनली, ठीक है, सेशन भी एक उसका पार्ट है। तो सेशन से हेल्प से क्या होता है, यूजर के जो प्रेफरेंसेस है, और हम लोग क्या यूजर के जो प्रेफरेंसेस है वो उसको हम लोग उनको दे सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द यूजर प्रेफरेंसेस जो भी इनका रिक्वायरमेंट है वी कैन गिव। देन these are the different methods of http सेशन। कौन से मेथड से, गेट आईडी, सेशन का आईडी, गेट लास्ट एक्सेस टाइम, कब लास्ट एक्सेस किया था, गेट एट्रीब्यूट मेथड, गेट एट्रीब्यूट नेम्स मेथड, सेट एट्रीब्यूट मेथड, रिमूव एट्रीब्यूट मेथड, इनवैलिड टाइम मेथड, ठीक है। इनवैलिड मींस क्या करेगा, अगर तुमको इनवैलिड करना है सेशन को, तो दिस मेथड इनवैलिड द सेशन मींस क्या करेगा वो, मतलब जो यूआरएल एनकोडेड है, ठीक है, यूआरएल इज एनकोडेड विद द सेशन आईडी, उसको वो जो बाइंड किया हुआ है, यूआरएल इज बाइंड जो है बाइंडिंग किया हुआ है यूआरएल का सेशन आईडी के साथ में, तो उसको अनबाइंड कर देगा। कौन, विद द हेल्प ऑफ इनवैलिडेट मेथड, मतलब पेज से सेशन रिमूव हो गया, ठीक है, इनवैलिडेट हो गया। देन रिमूव एट्रीब्यूट मेथड, रिमूव एट्रीब्यूट मेथड से अगर तुम क्या कर सकते हो, विद दिस मेथड यू कैन रिमूव द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विच इज बाउंड विद स्पेसिफाइड नेम, जो भी ऑब्जेक्ट बाउंड है स्पेसिफाइड सेशन के साथ में, वो तुम रिमूव कर सकते हो। पर्टिकुलर कोई एट्रीब्यूट तुमको रिमूव करना है या तुमको नेम रिमूव करना है, आईडी रिमूव करना है, तो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट यू कैन रिमूव विद द हेल्प ऑफ रिमूव एट्रीब्यूट मेथड। सेट एट्रीब्यूट से यू कैन सेट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ सेशन, ठीक है। तो सेट एट्रीब्यूट मेथड क्या बाइंड करता है ऑब्जेक्ट को, जो भी तुम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो उसको बाइंड करता है सेशन के साथ में, ठीक है। तो यू कैन इन सेट एट्रीब्यूट मेथड यू कैन गिव द सेशन नेम दे सकते हो, ठीक है। देन गेट एट्रीब्यूट नेम, गेट एट्रीब्यूट से वो तुमको रिट्राइव होगा, जो भी एट्रीब्यूट तुमने स्पेसिफाइड किए हो यू कैन रिट्राइव दैट, ठीक है, वो रिटर्न करेगा वो एट्रीब्यूट नेम्स को। गेट एट्रीब्यूट मेथड, गेट एट्रीब्यूट नेम्स मेथड, ठीक है, ये मैं डिलीट कर रही हूँ, इट्स नॉट नीडेड। सेट एट्रीब्यूट मेथड, गेट एट्रीब्यूट मेथड, देन गेट आईडी मेथड, ठीक है, जो सेशन का स्पेसिफिक यूनिक आईडी है वो आईडी मिलेगा। गेट लास्ट एक्सेस टाइम, क्लाइंट ने कब लास्ट एक्सेस किया था पेज, ठीक है, वो टाइमिंग मिलेगा। तो ये से क्या डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेशन है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एचटीटीपी सेशन इंटरफेस। So with this we have covered this servlet API topic, ठीक है, सर्वलेट एपीआई। सर्वलेट एपीआई में कौन से दो पैकेजेस हैं, इन सर्वलेट एपीआई what are the two packages, javax.servlet and javax.servlet.http, क्या प्रेजेंट है उसमें, दोनों पैकेजेस में, इन एपीआई, इन सर्वलेट एपीआई there are two packages, in that packages interfaces and classes are there, interfaces and classes are there। So with the help with the help of interfaces and classes क्या कर सकते हैं, we can create the servlet page, we can create the servlet page, we can load, we can initialize it, and service part also we can handle, request and response। ओवरऑल पूरा यही हो रहा है ना, लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट ही मैनेज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वलेट एपीआई। क्या हो रहा है, सर्वलेट एपीआई की हेल्प से वी आर मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ए सर्वलेट ओनली, इनिशियलाइजेशन से लेके डिस्ट्रॉय तक। पेज सी सर्वलेट एपीआई का काम क्या है, टू क्रिएट वेब पेज, टू क्रिएट अ वेब पेज, वेब पेज क्रिएट करने के लिए दिस सर्वलेट एपीआई इज यूज, वेब पेज क्रिएट करने के लिए सर्वलेट एपीआई यूज होगा। तो वो वेब पेज के जो भी मतलब वेब पेज में डिफरेंट फंक्शनैलिटीज यू कैन ऐड, ठीक है, कुकीज ऐड करना, सेशन ऐड करना, यही सब देखे ना हम लोग ने, रिक्वेस्ट सेंड करना, रेस्पॉन्स, एचटीटीपी सर्वलेट रेस्पॉन्स हैंडल करना, और क्या था, रिक्वेस्ट डिस्पैचर देखे थे, याद है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, पेज कैसे होना चाहिए, फॉरवर्ड रिक्वेस्ट डिस्पैचर मींस टू डिस्पैच द रिसोर्सेज,
तो उसमें दो मेथड से, इंक्लूड मेथड एंड फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, तो इंक्लूड क्या होता है, व्हाट इज इंक्लूड मेथड, व्हाट इज फॉरवर्ड मेथड। तो ये सब वेब पेजेस, मतलब तुम जब पेज क्रिएट कर रहे हो बाय यूजिंग दिस सर्वलेट टेक्नोलॉजी, तो डिफरेंट उसमें उसमें इंटरफेसेस और क्लासेस प्रेजेंट है, वो यूज करके तुम क्या कर सकते हो, वेब पेज यू कैन क्रिएट, यू कैन क्रिएट द वेब पेज। ठीक है, एक एप्लीकेशन तुम क्रिएट कर सकते हो। What are the, okay, now I will ask one question, you have to answer this. What are two methods of request dispatcher interface? रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस के कौन से दो मेथड्स हैं? मेथड्स ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर, who will answer this? अरबाज, अनम्यूट करके आंसर करो अरबाज। राशिद, two methods of request dispatcher, write in the chat box ना, chat box में लिखो। राशिद, अनम्यूट एंड आंसर, two methods of request dispatcher। प्रेजेंट हो गया नहीं, इसी ऐसे ही हो गया कनेक्टेड, यू आर नॉट रिप्लाइंग, तो क्या समझ में आएगा मेरे? अगर तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो ना, ना अनम्यूट करके ना चैट बॉक्स में, मीन्स प्रेजेंट नहीं हो, ओनली यू आर कनेक्टेड बट यू आर नॉट लिसनिंग। राशिद, अरबाज, दो नेम मैंने ले ली। ओके, नेक्स्ट पर्सन इज सूर्या, आर यू देयर? सूर्या, ओके, राशिद प्रेजेंट है। अरबाज नहीं है क्या? अरबाज सिर्फ कनेक्टेड है। नेक्स्ट सूर्या, ओके, अरबाज भी है। क्यों इतना लेट रिप्लाई क्यों आ रहा है फिर? रिप्लाई देने में इतना लेट क्यों? कीर्ति, राइट इन द चैट बॉक्स, ओके, राइट इन द चैट बॉक्स, टू मेथड्स ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ओके, जमीरुद्दीन ने क्या लिखा? फॉरवर्ड मेथड, यस राइट, वेरी गुड जमीरुद्दीन, फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड एंड वन मोर मेथड का नाम बताओ कौन सा है? आई विल नॉट से दिस, क्या है, कौन से मेथड से? एक फॉरवर्ड है, जमीरुद्दीन ने बताया है। एक और मेथड बताओ। टू मेथड और रिक्वेस्ट डिस्पैचर, एक हो गया फॉरवर्ड, और सेकंड मेथड है, who will answer this? Gerald, yes, include method, forward method and include method. Yes, right, forward method and include method. In the next lecture now we will start JDBC. Okay, कनेक्शन जो है JDBC के डिफरेंट टाइप्स ऑफ JDBC ड्राइवर्स, व्हाट इज JDBC, उसके कौन से ड्राइवर्स के टाइप्स है। So do revise and come in the next lecture ना, whatever we have covered this PPT। okay, ये जो PPT है, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, पढ़ के आओ ये PPT पूरा। ठीक है, I will conduct one test also in next week based on this servlet chapter.